कल की चर्चा में जैसे हमने देखा कि वेदों ने हर एक तत्व के अस्तित्व को अगर धर्म की संज्ञा दी है, उसके गुणों को, उसके परिग में आने वाले सब तत्व की विशेषताओं को अगर धर्म संज्ञा दी है, तो नित्य कर्म के अंतर्भूत यज्ञ का वर्णन किया है। और उसको फिर एक नई भूमिका में समझने की आवश्यकता होगी कि जिस भूमिका से आज समाज में प्रस्थापित यज्ञ की भूमिका है, वो एक तथाकथित धार्मिक विधि है, इस प्रकार उसकी भूमिका है, या किसी ग्रहों की शांति, इस प्रकार का उसे कोई एक वलय है। और जिस भूमिका से वेदों ने धर्म का वर्णन किया, उस भूमिका से यज्ञों को समझा जाए तो एक नई दृष्टिकोण की प्राप्ति हमें होगी। जिस दृष्टिकोण से, जिस भूमिका से परम सद्गुरु जी ने अग्निहोत्र का भी वर्णन किया है। Through our discussions that the concept of dharma as explained by Vedas and reiterated by Param Sadguru is very different from what we know today. Today, dharma basically is categorized as religion, and if that is not true, then the first karma or first must do action that the Vedas describe is if a yajna or agnihotra, then agnihotra also has to be understood from a very different perspective, because the perspective currently prevalent in the society or in much parts of the world is that yajnas are a religious process performed for rituals, mostly marriages and stuff like that, and a religious understanding rather than the spiritual scientific basis that we now have tried to look at it as. And that is a very different way of looking at things. That is a very whole new way of doing things in totality. That is what Param Sadguru basically tried to explain, that this is what it was intended and this is what you've understood. The two things are literally two poles apart, and both have to be distinguished to be understood in completeness. So if at all. मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 15 या 16 वर्ष हो चुके, मैं याद करने का प्रयास किया मैंने कि मुझे याद है मैं अभी भी शायद एमडी का अभ्यास कर रहा था। तब एक पूना में मुझे एक यूरोपीय देश के एक वैदिक अभ्यासक मिले थे, और उनका काफ़ी गाढ़ा अभ्यास था वैदिक तत्व ज्ञान का। और उनका मैं नाम नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अनुमति नहीं है उनके बारे में बात करने की, बट उन्होंने काफ़ी अभ्यास किया है वेदों का, और कई बार उनसे चर्चा हुई, विविध विषयों पर चर्चा होती थी। वो इस पूरी प्रणाली को भी जानते हैं, पूरे जो भी अभ्यास है उसको भी वो परिचित थे, और काफ़ी वेदों का उन्होंने अभ्यास किया था। और एक चर्चा के दरमियान मैं अर्थात आयुर्वेद का अभ्यास कर रहा था, और मेरे परीक्षाएं थी शायद एमडी की, तब उस कालखंड का ये सारा विषय है। और तब उस चर्चा के दौरान एक बहुत बार वो विषयों को समझने की प्रयास करते थे, और एक बहुत ही उत्साहवर्धक वो चर्चा हुआ करती थी। आई रिमेंबर इट वॉज 15 or 16 years ago when I was still at the university studying for my master's degree in Ayurveda. I had met a very learned Vedic scholar from Central Europe who was studying also for some dissertation or some thesis that he was writing on a part of the Vedic philosophy that he wanted to look at it from a whole different perspective. And of course, he was aware of what is happening through the whole Shivpuri Agnihotra movement. And he had understood, he had read a lot about Param Sadguru's philosophy as well. And he was also then doing his own study and his own inference in philosophy. And he was extremely well learned. He could, I mean, there were texts he had basically learned by heart. He could read them back and forth, page number wise as well. And he was a very well versed in Sanskrit as well.
and we used to have a lot of discussion on various topics. I was, of course, more focused on Ayurveda back then, and I used to go from that perspective. We used to come from the original Vedic background, and during one of the discussions, he said a very interesting thing that stuck in my mind for all these years. He said the biggest mistake that we have done is to think that the Vedas are books of religion or books of spirituality. He says the more I learn, the more I interpret these stanzas, I feel as if I am learning a manual of science. उस सारी चर्चा के कालखंड में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी जो मेरे मन में रह गई, वो जो घर कर गई थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, वेदों को धार्मिक या तत्वज्ञान का या अध्यात्म की किताबों को हमने उसका वर्गीकरण उसमें किया है। जितना भी उन्होंने कहा कि जितना भी मैं अभ्यास करता हूँ, जितना भी मैं इन श्लोकों का भावार्थ जानने का प्रयत्न करता हूँ, इनमें गहराई में इसको समझने का प्रयास करता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई धार्मिक किताब नहीं, मैं विज्ञान की कोई किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि इसका जो गर्भित अर्थ है वो सृष्टि का अभ्यास करके लिखा गया है, ना कि किसी देववाणी या वेदवाणी का कोई उसमें वर्णन है। ऐसा लगता है मानो जिन्होंने लिखा है उन्होंने काफी अभ्यास करने के बाद इन मुद्दों का वहां पे वर्णन किया होगा। He said that the more I study, the more I feel that the people had spent lot of time trying to come to these conclusions that they came to, and it was not their first attempt at trying to understand something. This was something that they could realize over a period of time, over a period of years and years of study that led them to these conclusions. And he said the Vedas are probably the only first known books of human understanding wherein the researchers, he called them, have documented the right from the whole how can you, the good word would be from genesis of this whole universe, current destruction state, and then again a new genesis, or again a new creation of the universe. This, he said, is a very unique phenomenon of the Vedas, because not many people have gone to that depth of trying to understand what the universe around them is, and the people who wrote these texts have actually been able to understand the working of the cosmos in a way that we still haven't understood yet. उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि इस जिन अभ्यासकों ने, वो उनको अभ्यासक या रिसर्चर कहा करते थे, जिन्होंने इस किताबों पर इन तथ्यों को रखा है, वो ऐसा लगता है कि काफी वर्षों के अध्ययन के बाद वो नतीजे पर पहुंचे थे कि ये मुद्दा ऐसा ऐसा है, और इस सृष्टि का बहुत गहराई में जाकर उन्होंने अध्ययन किया है। और मानवीय इतिहास में शायद वेद पहली एक किताब होंगी जिसमें सृष्टि के सृजन से लेकर अस्तित्व तक और अस्तित्व से लेकर विनाश तक और पुनः सृजन की बात की गई है। ये बहुत, उन्होंने कहा, विशेष बात है, क्योंकि इस प्रकार का सृष्टि का अध्ययन इतनी गहराई में जाकर, इतनी सूक्ष्मता में जाकर उन्होंने किया है कि सृष्टि का मानो पन्ना वो खोल कर देख पा रहे हो कि एक एक पन्ना अगर वो अपने मन के इस विशाल कक्ष में कहीं पर वो शायद एक किताब रखी होगी और उसको देखकर मानो सृष्टि का पूरा इतिहास पढ़ पा रहे हो। इस प्रकार का वर्णन उसमें किया है, क्योंकि इतना जितना उसमें they were probably from a very enriched civilization. When it was this, how was this, there is no understanding of it right now. But if they could record what is currently being said in these books, is something that humans mind or modern science has just started to understand. And the concepts and philosophies mentioned in these books are something that we have to still reach to as a conclusion, that modern research has to still lead. कनेक्शन निकल गया था शायद, अभी भी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं गई। तो ये बहुत उन्होंने एक सुंदर बात कही थी, मैंने उस पर काफी चिंतन किया था कि एक ऐसी विचार प्रणाली होगी, एक ऐसी मानवीय संस्कृति रही होगी
एक ऐसी मानवीय सभ्यता रही होगी जो आज के मानव के बौद्धिक क्षमता से कई ज्यादा विकसित हो चुकी थी, और उन्होंने उस विकसित बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो अध्ययन किया सृष्टि का, उसका वर्णन उन किताबों में रखा है, न कि किसी धार्मिक आध्यात्मिक विषय का वर्णन किया है। ऐसी उनके अभ्यासकों का एक मंतव्य है, ऐसा उनका एक स्वयं का अनुभव था। और जो आज अगर हम जितना अभ्यास अग्निहोत्र का कर रहे हैं, वो ये आज समझ में आ रहा है कि वो शायद सच हो, कि हम कितनी सरलता से मान लेते कि सुबह शाम करना है, एग्जैक्ट सनराइज एग्जैक्ट सनसेट को करना है, इसी ताम्र पात्र में करना है, इतना ही उसमें घी होना चाहिए, इतना ही कंडे हो, इतने ही दो। ये हमने कभी सोचा नहीं कि इतना पिन पॉइंटेड किसने किया। We took it very casually that yeah, there is a process called Agnihotra done at sunrise sunset. This requires a pot like this, cow dung like that, 2 offerings, 2 mantras, exactly this point. We never asked who came to the conclusion that exactly this has to be the process, the pinpointed to the last detail. Who came up with this? You know, how did this come to be? How did they realize that there should be a process like this, so precise, so concise also, and so pinpointed to the last minute detail, that it has all of these effects. We took it very as very granted. Maybe some God is there, something like that, and we never really try to understand the phenomenon behind it. You know, because Vedas start with fire as a chief component. If there is, like I said, this elevated, highly evolved state of the mind, and they are saying that this is a process that you can do to stabilize the nature around you and to stabilize your nature within you, they have come to this conclusion after a lot of understanding, a lot of research on their own part. Why would they come up with this particular technique in this particular format, done at these 2 particular points in time? There is no real answer to it. Why just that? Why not do it 12 o'clock in the afternoon? Why not do it 2 o'clock in the night? You know, there is no understanding, there is no explanation for this. इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि शायद जैसे वो कहा करते थे, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है कि शायद उस संस्कृति ने, जिसको ऋषि संस्कृति कहिए आप, जिनको वैदिक संस्कृति कहिए, जो भी उसको आप नामकरण करना चाहे करिए, उस संस्कृति ने इसका इतना सूक्ष्म अभ्यास कैसे किया कि उस ग्रंथ में उसका वर्णन आया है कि एक ऐसी प्रक्रिया शाम आप करिए, इस पर्टिकुलर शेप का पात्र हो, इतना उसमें गोमय लगेगा, उसमें चावल लगेंगे, गाय का घी लगेगा, यही 2 मंत्र लगेंगे, इसका आप करिए, इसमें इतने सारे आपको लाभ मिलेंगे। इसका अध्ययन उन्होंने कब किया और किसने किया? हम तो आज भी इसको रिसर्च करके इसके लाभ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मोबाइल फोन होता है, हम तो मोबाइल फोन सीधा लगा के अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि उसका इन्वेंशन किसने किया। तो जहां जिस वेदों का वो इतना गुणगान आज दुनिया कर रही है, उसकी शुरुआत अग्नि तत्व से होती है, अग्नि के गुणगान से होती है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ से देवर्तुजम, इस प्रकार से यज्ञों के गान से ही शुरुआत होती है। जिन उस उच्चतर विभूतियों ने, उस विकसित प्रतिभावान उन ऋषियों ने, या जो भी आप उनका नामकरण करना चाहे, विद्वानों ने इस प्रक्रिया का, इस सृष्टि का अभ्यास किया, उन्होंने ऐसा कहा है कि इस आपके आसपास का जो निसर्ग है और आपके अंदर का जो निसर्ग है, उसका समतोल बनाना होगा, तो इस प्रक्रिया को करना होगा, जिससे आपका संपूर्ण जीवन संतुलित होगा, है ना। यज्ञ का वर्णन जो आया है, अग्निहोत्र का वर्णन जो आया है, जिसका हमने कुछ दिनों पहले अभ्यास किया था, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा प्रयोवाच, उस भूमिका से अगर कल का अभ्यास करें कि निसर्ग ने अगर हमको बनाने के समय एक जन्मतः कुछ गुणों के साथ बनाया है, जिनको धर्म कहा है, तो नित्य कर्म उसी किताब में लिखा है। अगर अग्निहोत्र है तो उनका क्या परस्पर संबंध है? तो जिस सृष्टि ने इस तत्व को बनाया, उसी सृष्टि ने इस प्रकार की एक प्रक्रिया का भी वर्णन किया है, उस उच्चतर ज्ञान भंडार ने। जैसे उन्होंने कहा
कि कहाँ से ज्ञान आया। ऋषि भी जो ऋषि उस किताबों में लिखते हैं वो भी बोलते हैं कि हमको ये ज्ञान मिला है, हमने अब इसको बनाया नहीं है, हमको ये ज्ञान मिला है। तो जिस परमात्मा शक्ति जो है, जो सृष्टि की सृजन करने वाली शक्ति है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, सृजन उस सृष्टि का किया है, हर एक तत्व को एक विशिष्ट ढांचे में बनाया है, ढाला गया है, उसी ईश्वर शक्ति ने इसका भी वर्णन किया है। तो इसको बहुत ही सूक्ष्मता से अभ्यास करने की आवश्यकता है। Even the rishis or the seers or wise people, whatever you want to call them, they also mention in those texts that this is not something that we created. This was information of the cosmos or the universe that we got or we were revealed. And like we saw a couple of days ago in that hymn from the Gita, that Sahayajna Praja Srushta, the creative energy of this universe created everything with the knowledge or the philosophy of dharma built in, that every being was given a particular space to live, every being was given a particular task and purpose of existence. Same energy has also revealed this process of oneness or unity or elevating your own consciousness, that is called yajna or agnihotra. That is a difference in perspective that has to be understood, because currently we are looking at it from a very again I am saying, we are looking at it from the conditioning of the last 10,000 years. We have not understood that there is another hymn in the same Gita. Vedas of course have lines and lines, stanzas on the importance of yajna, but there is this hymn in Gita, parasparam bhavyatana देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं श्रेय परमावसता इष्टान भोगान ते म्हणा इष्टान् भोगान् निहो देवा तस्य यद्य भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भूतेस्तेनेव सा। ये दो श्लोक हैं, दोनों गीता के हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि सृष्टि के जो भी तत्व हैं, यज्ञ के माध्यम से उनकी पुष्टि कर कर, उनको बलवान कर कर आप अगर तृप्त बनाते हो तो वो तत्व आपको भी आशीर्वाद देते हैं, आपको भी तृप्त करते हैं। अगर ये आप ना करो, केवल उनसे ग्रहण करो और उनको पान ना करो, तो चोरी करने के जैसा है। ये इन चार श्लोकों में कहा है। In these 4 stanzas from the Gita, it is said, Lord Krishna says that through the process of yajnas, you are trying to, what is the good word? Nourish or strengthen the elements around you, and then thus these nourished or strengthened nature around you will bestow upon you all that you want for your fulfillment of life. And if this is a process of coexistence, co-inhabitance that you have to achieve, if you keep taking and not giving back, then it is like stealing from somebody and not giving back anything in return. So you understand from this perspective that we were looking at yesterday. Motive, rather than fulfilling the purpose of pacifying some god somewhere, they are not intending the god there, they are intending the god in the nature around you. Yajnas are never meant for any such purpose. Yajnas are always meant for trying to create a harmony between nature and man. We are the only species of animal on this planet who can actually create nourished or stable environment for our own being. Like a bacterium can do that, they can also create an environment that is conducive for their existence. Similarly, maybe it's a bad example, but this is what it was meant to be. Yajnas were always meant to be a process of initiating not within the nature around us as well. And that is what is being said. Dharma, first healing that you do is through performance of yajna. She included yajna as the first path of dharma. First path of oneness. यज्ञों के माध्यम से सृष्टि का समतोल बनाकर
जीवन को संतुलित बनाकर इस जीवन की यात्रा जो है उसको परिपूर्णता से जीने के लिए इस समतोल की आवश्यकता होने के कारण नित्य यज्ञों का आचरण करे, इस का वेदों की है। किसी भी ईश्वर को आपके दो निवालों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं पूर्ण है, उनको आपके निवालों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास का जो निसर्ग है जिससे आप इतनी ऊर्जा प्रदान आप ले लेते हो, उनको प्रदान करने की आवश्यकता होगी, ये जानकर इसका निर्माण किया गया है। थोड़ा समझने में मुश्किल है क्या? आप समझ रहे हैं? इसमें किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन ना भी किया जाए तो भी एक सिंपलिस्टिक फॉर्मेट है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आदान प्रदान के माध्यम से ही सृष्टि का सृजन किया गया है, और इस आदान प्रदान की श्रृंखला को अगर आप खंडित करोगे तो आप असमतोल में जाओगे। उसके माध्यम अगर असमतोल होगा तो आप अनारोग्य में जाओगे, दुख में जाओगे। अगर समतोल बनाए रखोगे सृष्टि के साथ, समतोल बनाए रखोगे इस निसर्ग के साथ, तो ही आप परिपूर्णता से आनंदित जीवन जी पाओगे, क्योंकि फिर सृष्टि भी आपको मुक्त हस्त से देगी। ये उसका वर्णन आया है। इसलिए यज्ञों का सृजन करे, इसलिए जरा मरियम सत्र कहा गया है अग्निहोत्र को। क्यों? जन्म से लेकर मृत्यु तक करने की ये प्रक्रिया है, क्योंकि आप जन्म से लेना शुरू करते हो, मृत्यु होने तक आप सृष्टि से ग्रहण करते हो। केवल ग्रहण करना ही होगा तो वो चौर्य होगा, चोरी किया जैसा होगा। प्रदान करोगे तो ही समतोल बना रखेगा। ये भूमिका इसकी है। That is the whole fundamental concept of the Agnihotra process, that from the birth to the death, we take everything that we need from the nature around us, and we have the capacity of not only giving back, but putting it in balance, in the right process, which no other animal can do. Maybe that was why they became extinct. A lot of them became extinct because they could not maintain the harmony of nature around them. But as humans, we can. And that process of maintaining the world around us in the form that we got it, the form that makes it livable for us, is the process of Agnihotra. We are still miles away from understanding what it truly is, but this is just the basic understanding. If my being on this planet, my dharma is to probably be full of love, the process where I achieve fulfillment of this dharma is when the nature around me is in harmony. I might want to be full of love a lot, to be at peace a lot, but if the nature is in constant state of flux, as it is today, how am I going to be at peace? So to make sure that our life's journey are not hindered by any natural imbalance around us, that is why they say yajnas are a must do. Jara Maryam Satra, they are referred to as. Something that one should do from the beginning to the end. Not only to maintain harmony within you, to find mental peace and equanimity within you, but also to keep the nature around you in a constant state of harmony. These two, this parasparam bhavetanena, these two, this give and take is what will create balance for your completeness in life. ये जो परस्परम भाव है, देना और लेना, इस भाव को अगर आप संतुलित रखते हो तो ही आपका जीवन परिपूर्णता से जी पाओगे। नहीं तो आपको लाख लगेगा कि मुझे शांति से जीना है, प्रसन्नता से जीना है, प्रेम पूर्वक जीना है, और अगर आपके आसपास का निसर्ग सतत एक असमतोल की स्थिति में होगा, सतत अगर आपको तकलीफ उससे कारण होती रहेगी, तो आप क्या संतुलित जीवन जी पाओगे? आपके अंदर का निसर्ग और आपके बाहर का निसर्ग जो एक अभेद्य कड़ी से जुड़ा है, ऊर्जा के अभेद्य कड़ी से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप उस निसर्ग के घटनाक्रम को आपके अंतरंग में भी महसूस करते हो। किसी और का अगर दुख महसूस करते हो, आनंद महसूस करते हो, उसी प्रकार असमतोल भी महसूस करते हो। और इन दोनों को अगर महसूस ना करना है, अगर आपको आनंद को ही अगर अनुभव करना है, अगर केवल समतोल का ही आपको अनुभव लेना है, तब परस्परम भावयतानेन इस प्रकार का यज्ञों का वर्णन है। ये भूमिका बहुत अलग है। प्रस्थापित जो भी भूमिका है, जो मैं ये भी कहूँगा, शायद मैंने जैसे काफी लोग नाराज होंगे, लेकिन जो बहुतांश यज्ञों की भूमिका प्रचलित है वो अंधश्रद्धा से घिरी हुई है। और
बहुत अवडंबर आ गया है उसके आसपास, बहुत बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है, बहुत गलत फहमियां है इस प्रक्रिया के आसपास। जिस स्पष्ट भूमिका से हमने धर्म के शब्द की ओर देखा, अगर उसी स्पष्ट भूमिका से अग्निहोत्र शब्द को देखते हैं, यज्ञ को शब्द को देखते हैं, तो मेरे अस्तित्व का कारण अगर प्रेम करना होगा, तो प्रेम की इस शांतिमय जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए जो साधन है वो अग्निहोत्र है। लिटिल डिफिकल्ट and everything you might have heard so far, I'm sorry to say it, I'm going to get a lot of flack for it, but is built on misconceptions. A lot of it is just mistranslation, misinterpretation of the original concept. It was never meant to be riddled with so much disbelief that is out there right now. Wherever I go and I hear lectures and discussions, and I'm really not very happy because you're not interpreting it right. You're trying to create a superstitious understanding, which is not true. It was a simple process which was meant for creating equanimity, a state of balance between our own emotions and a state of balance between the nature around us. And that is what Yajna vai bhuvanasya nabihi is something that Vedas say. Yajna is the center of all balance between a human and the nature's relation. As we can see today, that when the nature goes in a state of imbalance, what can happen is something that everybody is experiencing right now. And this will keep happening over and over again because we have lost the whole concept. We lost it for thousands of years and we saw what happened in between. We need to go back to creating this state of equilibrium, not only between our own hearts and minds, but also with the nature around us. Because we are linked with it. We are in a constant state of bond with the nature. Every breath you take, you can experience, you are bound with this nature around you. You're bound with all the living beings around you. Because without nature, you can't even live. If there is a slight imbalance in nature's state of balance, our life goes into a complete state of disorder. And we are, like I said, we are the only species who can actually affect the nature around us. Maybe that is why a lot of species that couldn't survive the nature's change are extinct today. Maybe, like I said, we get a lot of flack from the religious group because they say you are being crazy, you're endorsing the scientific side. The scientists called as pseudoscience, all humbug and all and boo-hoo kind of a science, So we are in between and we are happy being there. We are what we are. We have understood the whole concept from a whole different perspective. But that is something that we need to understand. That is what they have tried to tell us. They are not trying to give us a religious understanding. They are trying to give us a very practical understanding of this planet. Like I said before, also only books who talk about genesis of the universe, sustenance and destruction and creation again. Similarly, probably they are the first books to also talk about birth, death and rebirth again. So you are in this constant loop all over again, that your consciousness goes through all these states of being. शायद वेदों में पहली बार इस प्रकार के ज्ञान का वर्णन आया जिसमें केवल उत्पत्ति स्थिति और अभी तो मानव के भी जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु और पुनश्च जीवन, जन्म, इस श्रृंखला का वर्णन किया गया है। हम इस सृष्टि के साथ एक अभेद्य कड़ी से जुड़े हैं। हमारा अस्तित्व इस सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है और हम जितने जल्दी वो समझ जाएं उतना अच्छा होगा। हमने एक जैसे उस अभ्यासक ने बहुत सुंदर कहा, सबसे बड़ी आपकी दुर्दैव क्या है कि आपकी संस्कृति का मूल तत्व से नाता टूट गया। कहीं पर जो मूल ज्ञान था उसका और नाता टूट गया। जिस दिन आप अपने इस धरोहर को समझ पाओगे, जिस दिन आपकी संस्कृति की गहराई को समझ पाओगे, जिस दिन आपके पूर्वजों के अध्ययन को समझ पाओगे, उस दिन आप समझोगे कि कितनी विशाल विरासत हमें मिली है और कितना वैभवशाली हमारा एक भूतकाल रहा होगा। उसको जानने की आवश्यकता होगी, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता होगी,
पुनश्च एक बार उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता होगी और उसको लोगों के सामने एक नए स्वरूप में रखने की बहुत बहुत जरूरी आज आवश्यकता है। इसका हम सबको पता है। जैसे मैंने समझने में शायद ये क्लिष्ट लगेगा, लेकिन इन वाक्यों के माध्यम से इन सारे तत्ववेत्ताओं ने यही कहने का प्रयास किया है कि सृष्टि की उत्पत्ति में आपकी एक विशेष जगह है। उस विशेष जगह को पूर्ण करने के लिए पहला आपको क्या करना होगा? निसर्ग के साथ समतोल बनाना होगा। उसके लिए आपको अग्निहोत्र यज्ञ का विधान किया गया है। ये उसकी संकल्पना है। अब उसको शायद जो समझ जाएंगे, अगर ना समझे तो कृपया बोले हमें, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा क्लिष्ट लगता होगा, थोड़ा सा फेरी टेल जैसा लगता होगा शायद, कि ये कोई परी कथा लगती है शायद, और या कोई आपने इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भावार्थ आया है, जो शब्दों का वर्णन आया है, उसी को हमने परम सद्गुरु हर बार वो किसी का संदर्भ देते हैं कि ये देखो यहाँ पे ऐसा कहा है, ये देखिए उसमें ऐसा लिखा है और इसका अर्थ ऐसा है। इसका उन्होंने हमेशा स्पष्टीकरण देने का एक पर्याय रखा है कि आपको संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण। Guru would always give you a reference for his interpretation. He would never give you a thought that is from his own spur of the moment idea or a spontaneous thought. He would always give you references from some earlier work, reinterpret them in a different way and showcase you the original idea that it was. And that is why in this holy land of Yupuri, just right behind me stands, in front of me, stands the Dharma pillar, wherein he performed the first Somayagnya, the first Yajna in its purest form, after 2500 years of complete absence. इसीलिए शायद मेरे सामने आज ये भव्य यज्ञ स्तंभ दिख रहा है, जहाँ पर 1969 में, हिंदी थोड़ी खराब है, 1969 में परम सद्गुरु जी ने महासौम्य यज्ञ का आयोजन करके 2500 वर्ष के बाद पहला संपूर्ण सात्विक वेदाधारित वेदोपदेशित अहिंसक महासौम्या किया, जो उस मूल प्रणाली को, उस मूल तत्वज्ञान को, उस मूल तंत्र ज्ञान का पुनर्जीवन है। या तो ये भेद समझना बहुत आवश्यक है। इसको समझकर इसको उसका अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। जितना सरल हमको लगता है उससे बहुत गहरा ये विषय है, और जितने हम परम सद्गुरु जी के शब्दों का अभ्यास करेंगे उतना उसका एक नया प्रकाश में हमको उसका एक नजरिया नजर आता है कि कितने विशाल दृष्टि से देखा गया होगा, कितने वो बुद्धिमान रहे होंगे ऋषि, जिन्होंने इतनी गहराई में जाकर, इतनी सूक्ष्मता में जाकर इस सृष्टि का अध्ययन किया, और अध्ययन कर कर उनको इतनी सरलता से उन वाक्यों में लिखा है। केवल हमारी गलती इतनी है कि हम उन भाषा से हम परिचित नहीं है, और केवल हम शब्दार्थ देखते हैं। वेदों का जितना भी मैं ट्रांसलेशन देखता हूँ, केवल शब्दार्थ आता है, उसका भावार्थ नहीं आता है। इसका भी मैंने इन गीता श्लोकों का भी काफी बार हमने देखा है, लेकिन उसका गर्भित अर्थ भगवान श्री कृष्ण का ये था कि जैसे तब किया गया था, उन ऋषि मुनियों ने जैसा किया कि सृष्टि के समतोल निर्माण सृष्टि बनाई, उसी प्रकार आपको नित्य अगर आप अग्निहोत्र करते रहोगे, नित्य अगर होम करते रहोगे, तो सृष्टि मानव संस्कृति के लिए हमेशा होती रहेगी, समतुलित होती रहेगी, और मानव संस्कृति उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर जा पाएगी। उन्होंने वहां पे वर्णन किया है। तो ये जो 4-5 श्लोक हम हमेशा गाते हैं, उसमें उसका वर्णन आता है। ठीक है, किती झाले? झाला वेळ? 7:30 झाली वेळ। नमस्ते, मैं औरंगाबाद से पद्मा जाजू। हमारे घर में 40 साल से अग्निहोत्र करते हैं। हम नित्य अग्निहोत्र करते हैं। साथ ही में मैं रोज हवन, सूर्य नमस्कार और अन्य योग प्रकार भी करती हूँ। शुद्ध सात्विक अन्न के साथ अग्निहोत्र भस्म का सेवन भी करती हूँ। अग्निहोत्र से मेरे विचार सकारात्मक बने हैं, और आज कोरोना की जो परिस्थिति है उसका मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अग्निहोत्र करते हैं हमें कुछ नहीं होगा। यह कॉन्फिडेंस भी मुझ में अग्निहोत्र के वातावरण में रह के ही आया है। हम सभी अग्निहोत्री महिलाएं मिलकर सामूहिक अग्निहोत्र भी करते हैं। मुझे हरदम लगता है कि सभी लोगों ने अग्निहोत्र करना चाहिए। धन्यवाद।
इसी प्रकार का फिर कभी चर्चा आगे योग पर भी करनी होगी। जैसे उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार करते हैं, तो कभी आप किसी ने ये भी नहीं सोचा कि आड़ा टेढ़ा मुड़कर आगे पीछे झुककर शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसे चेंज होता है? कभी सोचा नहीं हमने कि जिस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाओ, दवाई लो, इतनी बार उतनी बार दवाई लेनी पड़ती होगी, वही परिणाम शरीर को मोड़कर कैसे आता है? तो क्या अध्ययन केवल सृष्टि का नहीं, मानवीय शरीर का, मानवीय मन का कितनी गहराई में करना पड़ा होगा, कितनी गहराई में जाकर विचार किया होगा, तब जाकर इन उत्तरों को प्राप्त किया है। Maybe someday we should talk about yoga as well in the same light, that how can maybe bending forwards and backwards, stretching a little bit, can give you the same effect that consuming medicine is giving you. How does your body postural shift change your metabolisms in such a way? The breathing probably, just by breathing in and out in a different way, in a different rhythm, changes body's metabolism. So the आणि एकच एक्सरसाइज आहे की तो ऑर्गनला पण एक्सरसाइज देतो, स्नायूंना पण देतो. yeah, I mean, Breathing. we need to understand, like I said, people who came up with these ideas really thought a lot, really went beyond what is called as human capacity. That's why the gentleman says they are from an intellectual source that we yet do not understand. It is from a source of knowledge that is still beyond human cognition. मानवी विचारधारा के, मानवी वैचारिक क्षमता के परे कोई एक बुद्धिमान, एक ज्ञान का एक ऊर्जा का स्रोत है जहां से ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होगा। वो कौन है, क्या है, पता नहीं, लेकिन ये मानवीय कक्षा के बहुत परे जाकर सृष्टि का अभ्यास किसी ने किया है। मानो जिसने सृजन किया उसी ने ज्ञान को प्रदान किया, ऐसा लगता है, ऐसा उनका अंतिम वाक्य है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत् सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। देव देवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय। Mm-hmm.